Now, so right now we are talking about active listening. Active listening. See, whenever we communicate with anyone, so it is very important to listen properly, right? If you want to establish or if you want to have a very good communication with someone, so it's very important that you have to listen to that person, right? Because it is said, be a good listener if you want to be a good communicator, right? If you want to be a good communicator, so you need to be a very good listener. So without listening properly, you cannot respond someone, right? Like, see, if you are talking to me and I am saying something, but you are not paying your attention to that what I am saying, then what will happen? You are not able to understand it properly. आप इसको अच्छे से नहीं समझ सकते हैं और इसका अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, right? So for that you need to be listen very properly. Okay, and you know, in our communication, so or at least 35%, more than 35% are listening works, right? More than 35%, always remember, listening works. So listening, there is a difference between listening and hearing. Can anybody tell me what is the difference between listening and hearing? Yes, Kishan, listening और hearing, क्या difference होता है? Hear में क्या होता है? Listening and hearing. हाँ, Vipin, what is listening and what is hearing? What is the difference? सर लिसनिंग में हम पॉजिटिवली और किसी को नेगेटिवली सुनते हैं और हेयरिंग में सुनते हैं. ओके, यस काजल. सर लिसनिंग मतलब शांति से किसी की बात को सुनना और हेयरिंग मतलब पूरी बात को सुनना. ओके, तो दोनों में ही सुनना हो गया है ना, दोनों में ही सुनना हो गया. See the difference between listening and hearing. In here you are paying your attention. आप क्या कर रहे हैं? अपना attention pay कर रहे हैं, आप concentrate कर रहे हैं. It means with your ears, your brain, your mind is also working, right? Right now you are listening to me. आप क्या कर रहे हैं? मुझे सुन रहे हैं, मुझे listen कर रहे हैं. But ये जो fan की आवाज़ आ रही है, फैन के जो पेटल्स हैं, इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं, इसकी जो आवाज़ आ रही हैं, इसको आप सिर्फ क्या कर रहे हो? यू कैन जस्ट हेयर इट, यू आर जस्ट हेयरिंग इट. आप इसकी ओर ध्यान दे रहे हो क्या? ये तेज़ आवाज़ आ रही है या धीमी आवाज़ आ रही है? यू आर नॉट पेइंग योर अटेंशन टू दिस थिंग, राइट? सो दिस इज हेयर. इन हेयर यू आर जस्ट यूजिंग योर ईयर्स, बट इन लिसन यू आर पेइंग योर अटेंशन. इट मीन्स योर ब्रेन इज ऑल्सो वर्किंग, राइट? आप लिसन में क्या करते हो? सुनते हो और समझने की कोशिश करते हैं, राइट? यू ऑलवेज लिसन टू दैट थिंग and you always try to understand what is being said, right? And it is very important to have active listening activity, or you can say habit, when you are communicating with someone, right? Active listening, this is very, very important. Why? So there are some reasons why you need to be active listener. There are two types of listening, active listening and passive listening. Active listening, when you are paying attention, right? When you are paying attention. Passive, you're just hearing. You're just hearing, you're not paying attention, right? You may have noticed, like when you are talking to somebody, किसी से आप बात कर रहे हैं और अचानक से आप देखते हैं कि वो आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, आपको कैसा फील होता है? बुरा सा फील होता है ना?
यार मैं कुछ कह रहा हूँ और ये जो है मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, राइट। सो इसके लिए एक्टिव लिसनिंग का होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कैन फील योर वैल्यू, so that we can give, if we are listener, so we can give value to someone, especially that person who is talking to us. उससे इसको क्या वैल्यू दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, राइट। एंड द पर्सन फील्स दैट यस आई एम ऑल्सो वैल्यूड, राइट। तो एक्टिव लिसनिंग के ये सारे के सारे पर्पज होते हैं, वाई वी शुड हैव एक्टिव लिसनिंग। ओके, द first thing why we need to be active listener. The first thing, to give value to another person, right? This is the first thing, so that if you are talking to someone and the person is listening to you, so you feel very valued, you feel it, right, that yes, I am being given importance, and whatever I am saying, this statement is also being given importance, right? Another reason, दूसरा reason जो होता है, that is you can concentrate and understand properly. आप लिसनिंग आपकी अच्छी नहीं है, इफ़ योर लिसनिंग स्किल्स आर नॉट गुड, देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। आपने देखा होगा कई बार आप मूवीज़ देखते हैं या कोई आपसे कोई भी इंग्लिश में बात करता है, सो जनरली क्या होता है, आप उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपकी उसके अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी, क्योंकि आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो आप अंडरस्टैंड कैसे करोगे, आप उसको समझोगे कैसे, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आप कोई भी मूवी आप देख रहे हो, कोई भी इंग्लिश मूवी आप देख रहे हो, जनरली लोग क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज में जब बिगिनर लेवल पर वो होते हैं तो क्या करते हैं, दे यूज़ हेडफोन्स, राइट, दे यूज़ हेडफोन्स। हालांकि मैं हेडफोन्स को ये प्रमोट नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा हेडफोन्स यूज़ करें, बिकॉज इट कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ, राइट। बट फिर भी कभी कभी आपको 10-15 मिनट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी हो, इन इनिशियल स्टेज यू कैन यूज़ द हेडफोन्स, राइट। हेडफोन्स क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि हमें जो है बाहर की कोई और साउंड, बाहर की कोई और वॉइस ना सुनाई दे और हम कहीं और अपना माइंड डाइवर्ट ना कर सकें, राइट। हम पूरी तरह से उसी बात पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें जो भी हमसे बोला जा रहा है। और आपने देखा भी होगा, जब कोई नॉर्मल बोल रहा है तब आप कम समझ पाते हो, लेकिन जब आप हेडफोन यूज़ करते हैं तब आप अच्छे से समझ लेते हो। वाई? बिकॉज योर माइंड इज़ फुल्ली अटेंडेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाट इज़ बीइंग सेड, राइट। जो भी आपसे कहा जा रहा है आप उसकी ओर क्या होते हैं, बिल्कुल फुली अटेंटिव होते हो, राइट। सो हमेशा ध्यान रखना, और आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि आपकी उस टाइम पे क्या हो गई, लिसनिंग पावर अच्छी हो गई, आपने उसको इम्प्रूव कर लिया। यू आर लिसनिंग ओनली दैट थिंग, जो भी स्टेटमेंट आप सुन रहे हैं, आप केवल आपका माइंड, आपका जो कंसंट्रेशन होता है उसी ओर जाता है और आपको अच्छे से भी समझ में आता है, राइट। सो दिस इज एक्टिव लिसनिंग, like a purpose why we need to be active listener. Another, to empathize. अभी empathize क्या होता है, एक होता है sympathy, एक होता है empathy. सिंपैथी, आप सहानुभूति रखते हैं, हम दर्द नहीं रखते हैं किसी के लिए। लाइक somebody is telling you his problems, right? Somebody is telling you his problems and you just have some sympathy for him. Oh, बेचारे के साथ ऐसा हो गया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? So this is sympathy. Empathy, when you have sympathy and you take some actions to help him, आप जो है उसकी हेल्प करने के लिए कुछ एक्शंस लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। और एम्पैथी से बना एम्पैथाइज, राइट। तो आप जब किसी की बात को सुनते हैं प्रॉपर तरीके से, सो यू कैन एम्पैथाइज ऑल्सो, राइट। आप, क्योंकि आप सपोज मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि दैट्स यस समथिंग इज़ हैपनिंग रॉन्ग इन माई लाइफ नाउ डेज,
I'm surrounded by some problems, right? Then what happens if you are listening me properly, then you can empathize. आपने सुनी ही नहीं मेरी बात को, आपने attention ही नहीं पे किया, so how can you empathize to me? आप नहीं empathize कर सकते ना. So this is also very important if you want to empathize somebody. So before that you need to listen to him properly. All right? Okay. Next. Another purpose. What could be? Yes, anyone? Problem solving. Problem solving communication, right? See, remember, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को आप कम्युनिकेट करने से क्या करते हैं, उनको इग्नोर करते हो. You ignore many people in your life, right, to communicate. Why? Because they don't listen to you properly, right? ये आपका अपना एक्सपीरियंस भी रहा होगा. जब भी आप किसी से बात करते हो तो कुछ लोग जो हैं आपकी बात को सुनते नहीं हैं प्रॉपर तरीके से. नेक्स्ट टाइम क्या होता है, इफ इट इज़ हैपनिंग रिपीटेडली, अगर ये बार बार हो रहा है, फ्लुएंटली हो रहा है, तो आप क्या करते हो, आप उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हो, राइट? वाई? बिकॉज ही इज़ नॉट लिसनिंग टू यू प्रॉपरली एंड देन यू नेवर एवर शेयर योर प्रॉब्लम्स विद दैट पर्सन. आप जो है उस पर्सन के साथ क्या फिर कभी भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हो. करते हो? नहीं करते ना. आपने कभी ये नोटिस किया होगा, कभी एक्सपीरियंस किया होगा. सी, इट्स ऑल अबाउट फील. इट्स ऑल अबाउट फीलिंग. ये सारी चीज़ें फील करने की होती है. कम्युनिकेशन में हर चीज़ फील करने की होती है, राइट? जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, वेदर इट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सो यू नीड टू फील इट, राइट? ओके. प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्युनिकेशन. कोई आपसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहा है या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन खुद से कर रहा है या आप खुद से कर रहे हो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, राइट? If you are listening properly, then you can pay attention and then yes, you can have some ideas. आपके पास से कुछ solutions आ सकते हैं, कुछ ideas आ सकते हैं. आप attention ही नहीं दोगे, आप concentration नहीं दोगे उस person की ओर जो भी आपसे बात कर रहा है, तो आप कैसे उसको problem solving जो है आप ideas नहीं दे सकते उससे, आप उससे communicate नहीं कर सकते, right? So all these are the reasons why we need to be active listener, right? Any questions now? Sure? Chale, all right. Thank you very much. I hope that now you will be able to understand what is active listening and why it is important. क्यों ये important है हमारे communication के लिए, right? अभी जैसे आप सुन रहे हैं मुझे आप सुन रहे हैं ना. अभी सोचो आप मेरी बात को अच्छे से concentrate नहीं करोगे, आपका mind कहीं और divert है, आपका mind कहीं और ही है. Right, you are physically here but not mentally. Then can you understand me properly what I am saying? नहीं समझ सकते ना फिर, है ना? If I am asking you something that yes Anuj, yes sir, yes. What did I say? Sorry sir, I couldn't pay attention. यही होता है ना फिर, right? क्योंकि आप उस टाइम पे एक्टिव लिसनर नहीं हैं. So you need to be active listener, right? और हमेशा ध्यान रखना हमारे कम्युनिकेशन में लिसनिंग पार्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्लियर? एनी क्वेश्चंस नाउ? चलो, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच.